सरगम पुरानी बात। I know, लेकिन उसके बाद you never did anything for films. I would love to someday, yeah. फिल्म हमारी कहाँ अभी कुछ इतनी बन भी नहीं रही है, बन रही हैं तो मैं कराची आ गई तो लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री का पूरा तो I would love to, इंशाल्लाह मेरी एल्बम में से कोई सॉन्ग्स कर लें और अगर कोई if there's any project like Sargam is going on, I'm really on for that. I would do that. You wouldn't have a problem. No, I wouldn't have. उधर उसमें आपकी कितनी contribution थी, अदनान की कितनी, was it mostly his stuff? It was his stuff. It was his stuff. It was a great opportunity at that time, and Adnan obviously is a great composer, तो वो तो all-time favorite है, yeah. All-time favorite. Yeah, he's good. He's except he's sitting in another country and he's not doing anything for us. Yes. Come back. But yes, I think life की जो experiences होती हैं या life में जो आपकी initial grounding होती हैं, those are बहुत I have come a long way, yeah. Why not? और उसी में मजा आता है. आपको overnight एक fame मिल जाए तो उसका शायद जो नशा है या मजा है, आई थिंक वो इतना नहीं है जितना आपको स्ट्रगल करके आता है. और मैं इसको स्ट्रगल नहीं कहूंगी, मैंने तो मतलब देखा जाए तो मैंने स्ट्रगल की है अगर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल देखा जाए, लेकिन मुझे वो स्ट्रगल में भी मजा आता था. मुझे लगता था जैसे मैं स्ट्रगल नहीं कर रही, मैं तो अपने अंदर का वो पूरा कर रही हूँ, मतलब एक अपने अंदर का मजा ले रही हूँ म्यूजिक का. वो मेरा बस पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ एंड माई म्यूजिक एक्सपीरियंसेस. तो वो पाइल अप होते जा रहे हैं माशाल्लाह with time, with age and all that. And I'm loving it. Well, how about the new addition in your life? Are you passing anything on to my baby? Yes. Yeah. Seriously, I won't really exaggerate about it, but trust me, he's a music lover. Really? Yes. How can he not be? God has truly chosen him for me. Really? बिल्कुल जिस तरह two souls made for each other. And he's more of a music lover than me. It seems so. कि 1.5 साल की एज में एक बच्चा जो है वो डांस कर रहा है म्यूजिक पे और मेमा मेरा गाना वो गाता भी है माइक पकड़ के. मेमा मैं कहती हूँ बूहे बारियां सुनाओ सही और बूबा 1.5 साल का बेबी. Excellent. How are you enjoying that whole process of being a mom? I feel complete. Yeah. You're enjoying it a lot. I'm enjoying it thoroughly, and he keeps me away from all the negativities or maybe some low phases of my life. या जितनी भी stressful हुई भी होती हूँ तो he really calms me down and he's like the light. Seriously. पूरे घर में एक रोशनी सी होती है. मैं तो अक्सर कह भी देती हूँ उसको मेरा नूर मेरी रोशनी. बड़ी चीजें बोलती हूँ. Have you composed music for him? I think every music that is coming out nowadays, it's और जितना मैंने शायद पहले भी किया है वो भी मुझे लगता है शायद इसी के लिए किया है. हाँ. Seriously. That's wonderful. He's my focus now. अभी तो स्कूल जाएगा. Oh yes. फिर आप सुबह उठेंगी फिर क्या करेंगी? फिर यही करूँगी. अभी भी तो उठती हूँ. अभी उठती हूँ लेकिन फिर सो जाती हूँ ना. फीड वगैरह के लिए उठती हूँ फिर सो जाती हूँ फिर वही करूँगी. जाऊँगी उठूँगी. फिर हम दोबारा इनको बुलाएंगे. Very soon. Yes. With him. Yeah. Then he can sing a little tune for us. But tell me something. Being or reaching the level that one reaches, and we talk about responsibilities, उसको maintain करना फिर when एक album आपकी आती है and it's especially the first album always comes with a bang because it's a new voice people are hearing and everything. तो second album के लिए बहुत ज़्यादा tension होती है और do you feel कि नहीं, as you say कि it's a passion, I just take it. मैंने कभी भी music को pressure समझ के नहीं लिया. You've taken your मैंने time. कभी किसी सॉन्ग को ये समझ के नहीं कंपोज किया या कभी किसी कंपोजर के साथ इस तरह बैठ के नहीं किया कि हिट होना चाहिए गाना. अगर वो मेरे दिल को नहीं लग रहा आप नहीं करेंगे. I won't do that. You won't. Meaning आप ये नहीं कहेंगे कि भाई इस वक्त भंगड़ा चल रहा है तो let's do भंगड़ा. इस वक्त ये चल रहा है. मैंने कभी फॉर्मूला म्यूजिक को कभी भी ना प्रमोट किया है ना मैं खुद उस पर बिलीव करती हूँ. Because experimental भी आपने इसीलिए मेरा काम कम है और बहुत ही सिलेक्टिव सा है. नहीं तो अदरवाइज मेरी हर साल कुछ ना कुछ मैं कर रही हूँ म्यूजिक, लेकिन वो चाहे वो पब्लिक में नहीं आ रहा. आई एम डूइंग इट, आई एम लर्निंग, आई एम जस्ट सर्चिंग, सीकिंग, व्हाटएवर, बट आई बिलीव इन वेरी सिलेक्टिव वर्क. तो डिस्ट्रीब्यूटर से प्रेशर आता है, कहते हैं कि भाई इस किस्म की एल्बम चाहिए, या आप करते हो और फिर उनके पास ये जाते तो हो? मानने की बात है कि अगर
कोई भी आप भंगड़ा और उस तरह की चीज़ें आप बना लेंगे और वो फिल्मी टाइप का म्यूज़िक बना लेंगे और बहुत ही वो उस तरह का कमर्शियल टाइप की चीज़ बना लेंगे नाचने कूदने वाली, तो उसके लिए सब के सब आ जाएंगे आप पे। अच्छा, या लाइक वीज प्रॉपर या हमें दे दें हमें। अच्छा, मेरी इंग्लिश की एल्बम जो अब it's gonna be coming next week. Yes, and it's Rough Cut with Amir Zaki. Exactly, we will talk about that in detail. ये मेरी एल्बम नेक्स्ट वीक आएगी, इंटरनेट पे रिलीज हो चुकी है। इंटरनेट पे? या आपने खुद किया? नेट पे हो चुकी है या आपने खुद रिलीज किया है iTunes पे, Napster पे, E-Music पे, Real Music पे, यानी नेट पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन परचेज द एल्बम फ्रॉम देयर, CDs and everything. Yeah, next week it will be available. My song is also out. Yes, yesterday, yeah. My and video. we will also be getting a jhalak of it today. Yes. So इस एल्बम के लिए मुझे जितनी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है, मुझे और लाला को, इरफान को, जकी को himself, बस जकी चूंकि वो पूरी एल्बम बना के प्रोड्यूस करके आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन जो इरफान है वो उसको इधर उधर बस जकी नोज एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग विद द करंट सीन, स्पेशली विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑल दैट, कि हमें बहुत क्रूशल टाइम से हम तीनों को गुजरना पड़ा है। बिकॉज ये मैं आपको बता दूं, द होल एंगल इज इन इंग्लिश। आइए बार बार कहती हूँ मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। द होल एल्बम इज इन इंग्लिश। यस, द होल एल्बम। तो ये भी इट्स एज अ ह्यूज चैलेंज, इट्स अ ह्यूज चैलेंज। आई बिलीव इन, है ना, चैलेंज। आई थिंक सो वन शुड। हाँ, बिकॉज लोग कहते हैं ना कि आप ये क्यों करते हैं, भाई द थिंग इज यू गेट वन लाइफ टू लिव, मीनिंग अगर उसमें आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे उसमें, एज लॉन्ग एज आप किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे, एज लॉन्ग एज आप किसी को, मेरे बिल्कुल दिल की बात कह रही हो कि एक लाइफ है, किस किस के बारे में आप सोचेंगे? आप कितने भी परफेक्ट बन जाएं, आप यहाँ पे हिजाब भी लेके बैठ जाएं, आप घर में बिल्कुल चार दीवारी में कुछ भी ना करें, तब भी आप पे दुनिया खुश नहीं होगी। सही बात। आपकी एक लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है, आपका दिल चाहता है तो आप उसको करें, जिस तरीके से जीना चाहते हैं जिए, as long as you're not hurting anyone's feelings, you're not giving pain to another person, you're not spreading any wrong message to people. एंगर नहीं स्प्रेड कर रहे, हेट्रेड नहीं स्प्रेड कर रहे। मैं अपने म्यूजिक के थ्रू प्यार को प्रमोट कर रही हूँ, पीस को प्रमोट कर रही हूँ और सैनिटी को प्रमोट कर रही हूँ, डीपर फीलिंग्स, इमोशंस उनको प्रमोट कर रही हूँ। और ये तो इतना बड़ा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी आमिर जकी के साथ काम करने की। आई बिलीव दैट ही इज आवर लेजेंड। उससे बड़ा म्यूजिशियन पाकिस्तान में नहीं है माशाल्लाह से। And I got this opportunity, and I got it through him because I got to work with him and for my Urdu song Is Baar Milo, and and he was more comfortable writing in English, and he said, would you be interested in singing an English album? I said, anything man, you are damn good. I mean, mashallah, हमारे बहुत सारे बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं हमारे मुल्क में, बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, but lot of talent. He doesn't have any comparison. Amir Zaki is. और आजकल आपको ज्यादातर नजर नहीं आ रहे because he is I think playing music right now for himself. ज़्यादातर he's into cave dwelling kind of process, and he's into meditation. Which is a good thing. I think break भी लेना चाहिए because जब आपने बहुत काम कर लिया, then one needs to work for themselves. And he's a very moody person, and he goes through his moods. I'm a moody person too. I think you must be moody too. जितने भी artists हैं वो अपने moods के लिहाज से, हम लोग we are not doing it for any commercial aspects. ये भी जो album है इसमें जितने भी lyrics हैं, ये आमिर के लिरिक्स हैं। लोग आमिर जकी को एज अ गिटारिस्ट समझते हैं, जानते हैं, और आफ्टर सिग्नेचर उसकी जिंदगी में, यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो एक वाहिद आर्टिस्ट था जिसकी पहली इंस्ट्रूमेंटल एल्बम आई थी सिग्नेचर, और आज तक उसको बाहर के मुल्कों में भी इधर उधर एक्नॉलेज करते हैं लोग।